Now, hello everyone. Today I am going to talk about the topic इथनोबॉटनी। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ इथनोबॉटनी, जिसको कि मानव जाति वनस्पति विज्ञान या लोक वनस्पतिकी कहा जाता है। यह टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड टू बीएड सेमेस्टर 4 पेपर नंबर 13। इन द सेंस that means it is related to optional paper issues of conservation and environmental regeneration। जब कहीं भी इथनोबॉटनी, अब मैं थोड़ा टॉपिक की बात करूँ, जब कहीं भी इथनोबॉटनी की बात होती है, इन द सेंस दैट मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल और कम्युनिटी एलोंग विथ द प्लांट्स, यानी पौधों और समुदाय के बीच का एक संबंध, एक आधार है। आप सभी जानते हैं पौधों की कुछ जो पेड़ होते हैं उसकी कुछ पूजा भी होती है, उसके प्रति एक अलग आस्था होती है, तो उसकी उपयोगिता का आधार भी है। और वनस्पति जगत में इस चीज़ पर विशेष तौर पर चर्चा की जाती है कि कैसे इसका जो है वह आयुर्वेद इस पर ज़्यादा उपयोग करता है कि कैसे इसकी उपयोगिता के बारे में मनुष्य को, मानव को जागरूक किया जाए। लेकिन मानव स्वयं ही प्राचीन काल से ऐसी अवस्था में रहा, दैट मीन्स दे नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, दैट मीन्स यूटिलिटी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्लांट्स, इन द सेंस दैट मीन्स इन द वे दैट इज ही और सी यूजेज इन द जर्नल सिम्टम्स और जर्नल प्रॉब्लम। वो जो मनुष्य हैं वो हमेशा ही आदिकाल से, प्राचीन काल से परंपरा रही है कि वो कुछ न कुछ चीज़ों में वनस्पति का, प्लांट का प्रयोग करते हैं, जिससे कि उनकी कुछ समस्याओं का समाधान होता है। तो ये स्पष्ट है कि इथनोबॉटनी दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिलेवेंट एंड इट इज़ फ्रूटफुल एंड यूजफुल फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। मैं इसे अब थोड़ा सा और विस्तार से बात करने जा रहा हूँ। नाउ फर्स्ट डिस्क्राइब इन इंग्लिश इथनोबॉटनी एंड इट्स रोल इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। बट फर्स्ट I will emphasize about the ethnobotany, meaning, definition and concept of ethnobotany. Ethnobotany is coined with two terms, that is ethno, study of people, and botany, study of plants. Ethnobotany is the science in which the relationship between communities and plants are studied. Ethnobotany is the study of how people of a particular culture and region make the use of indigenous plants. Ethnobotanists explore how plants are used for such things as food, shelter, medicine, clothing, hunting, and religious ceremonies. Ethnobotany is the study of a region's plants and their practical uses through the traditional knowledge of a local culture and people. Richard Ivan Schultes, often referred to as the father of ethnobotany, explained the discipline in this way. Ethnobotany simply means investigating plants used by societies in various parts of the world. In India, the term ethnobotany was first used by Hertzberger 1825 and its scope was much elaborated later. The father of Indian ethnobotany was Dr. S.K. Jain. Now, the study of the direct relationship between plants and man is an interdisciplinary science. It is called ethnobotany. Intellectual property and benefits, sharing arrangements and important issues in ethnobotany. Primitive man understood the need for conservation of natural resources and he exploited plants only to meet his minimum needs. Due to interdisciplinary nature and socio-economic impacts, the linkages of ethnobotany have proliferated. Ethnobotany thus has relevance with problems of nutrition, healthcare and life support system, social customs, mythological association or faith in plants, cottage industries, economic conservation of biodiversity and sustainable use of plant resources. There are over 200 tribes, sub-tribes, clans
and some other ethnic groups in India, but in reference to Jharkhand, following are ethnic groups such as Baiga, Korwa, Lohra, Munda, Mahto, Malar, Parhaya, Purja, Saurya, Paharia. That is the name of the tribals in Jharkhand, and they are mostly usage and know about the plants that is relevant to his problems. Importance of ethnobotany, that is most important. Ethnobotanical knowledge is very ancient. It provides information regarding the traditional usage of plants wealth which can be utilized in integrated tribal development. The ethnobotanical studies throw light on the certain unknown useful plants and new uses of many known plants which can be exploited for developing new sources for some plants products and agro based industries. Ethnobotany, third point, ethnobotany, the scope of this natural science has now greatly increased both in terms of its theoretical contribution towards the understanding of plant human relationship and the practical knowledge of tribal people in medicine, agriculture, health and industry. The tribals depend mostly on forest flora for meeting their day-to-day needs and primary health care. They collect and utilize many wild plants for food, medicine, fiber, oils, gums, tannins and dyes from the ambient vegetation of their localities. अब मैं थोड़ा इन सभी चीज़ों को हिंदी में स्पष्ट कर दूँ. इंग्लिश में मैं बता दूँ कि अगले इन द नेक्स्ट क्लास I will talk about the role of ethnobotany in the present day world. मैं अब हिंदी में स्पष्ट कर दूं. मानव जाति वनस्पति विज्ञान लोक वनस्पति की और वर्तमान विश्व में इसकी भूमिका. आज मैं सिर्फ मानव जाति वनस्पति की और लोक वनस्पति की में खासकर उसकी परिभाषा अर्थ अवधारणा के साथ ही साथ उसके महत्व के बारे में चर्चा कर रहा हूँ. एथनोबॉटनी को दो शब्दों यानी एथनो लोगों का अध्ययन और वनस्पति विज्ञान पौधों का अध्ययन. मानव जाति या वनस्पति विज्ञान लोक वनस्पति की इसी को बोला जाता है. वह विज्ञान है जिसमें समुदायों और पादप के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है. मानव जाति यानी वनस्पति विज्ञान लोक वनस्पति का अर्थ है पौधों और उनके चिकित्सा धार्मिक या अन्य उपयोगों से संबंधित लोगों के पारंपरिक ज्ञान और रीति रिवाजों का वैज्ञानिक अध्ययन. लोक वनस्पति की एक क्षेत्र के पौधों का अध्ययन है और उनका व्यवहारिक उपयोग स्थानीय संस्कृति और लोगों के पारंपरिक ज्ञान के माध्यम से होता है. रिचर्ड इवास शुल्ट्ज जिन्होंने अक्सर एथनोबॉटनी के पिता के रूप में जाना जाता है. एथनोबॉटनी का सीधा अर्थ है उनके अनुसार दुनिया के विभिन्न हिस्सों में समाज द्वारा उपयोग किए जाने वाले पौधों की जांच. भारत में एथनोबॉटनी शब्द का पहली बार उपयोग हर्षबर्गर 1895 में किया था और बाद में इसके द्वारा बहुत विस्तृत हो गया, यानी उनके द्वारा बहुत सारा विस्तृत किया गया. भारतीय एथनोबॉटनी के जनक डॉक्टर एस.के. जैन को भारतीय एथनोबॉटनी के पिता के रूप में जाना जाता है. मानव जाति यानी वनस्पति विज्ञान लोक वनस्पति की इस बात का अध्ययन है कि किसी विशेष संस्कृति और क्षेत्र के लोग कैसे स्वदेशी पौधों का उपयोग करते हैं. साथ ही साथ इस बात का पता चलता है कि भोजन, आश्रय, चिकित्सा, कपड़े, शिकार और धार्मिक समारोह जैसे चीज़ों के लिए पौधों का उपयोग कैसे किया जाता है. जातीय संपदा में बौद्धिक संपदा अधिकार और लाभ साझाकरण व्यवस्था महत्वपूर्ण मुद्दे हैं. पौधों और मनुष्य के बीच सीधा संबंध का अध्ययन एक अंतः विषय विज्ञान है. इसे एथनोबॉटनी कहा जाता है. आदिम मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता को समझा और उसने अपनी न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने के लिए पौधों का दोहन किया. एथनो वनस्पति विज्ञान का ज्ञान हमारे देश के आदिवासियों और आदिवासी आबादी की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और नई हर्बल दवाओं आदि के नए स्रोतों की खोज की क्षमता रखता है. भारत में 200 से अधिक जनजातियाँ, उपजनजातियाँ और कुछ अन्य जातीय समूह हैं, लेकिन झारखंड के संदर्भ में निम्न जातीय समूह जैसे बैगा, कोरवा, लोहरा, मुंडा, महतो, मल्लार, पैरिया, पुरजा, सौरिया, पहाड़िया. अंतर विषय प्रकृति और सामाजिक आर्थिक प्रभावों के कारण एथनोबॉटनी के संपर्कों
ने प्रसार किया है। इस प्रकार एथनोबॉटनी में पोषण, स्वास्थ्य, देखभाल और जीवन समर्थन प्रणाली, सामाजिक रीति रिवाजों, पौधों, कुटीर उद्योगों, आर्थिक उत्थान, जैविक विविध और के संरक्षण और पौधों के संसाधनों के सतत उपयोगों में विश्वास के साथ प्रासंगिकता है। मानव जाति यानी वनस्पति विज्ञान, लोक वनस्पतिकी का महत्व। नंबर 1, एथनो वनस्पति ज्ञान बहुत प्राचीन है। यह पौधों के धन के पारंपरिक उपयोगों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिसका उपयोग एकीकृत जनजातीय विकास में किया जा सकता है। नंबर 2, एथनो वनस्पति अध्ययन कुछ अज्ञात उपयोगी पौधों और कुछ ज्ञात पौधों के नए उपयोगों पर प्रकाश डालते हैं, जिनका उपयोग कुछ संयंत्र उत्पादों और कृषि आधारित उद्योगों को विकसित करने के लिए किया जाता है। नंबर 3, एथनो वनस्पति विज्ञान का दायरा पौधे, मानव संबंधों, चिकित्सा, कृषि, स्वास्थ्य और उद्योगों में आदिवासी लोगों के व्यवहारिक ज्ञान के प्रति अपने सैद्धांतिक योगदान के मामले में बहुत बढ़ गया है। आदिवासी ज़्यादातर वनस्पतियों पर निर्भर रहते हैं ताकि वे अपनी दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए बैठक कर सकें। वे अपने इलाकों नंबर 5, वे अपने इलाकों को परिवेशी वनस्पति से भोजन, दवाओं, फाइबर, तेल, मसूड़ों, टैनिन और रजक के लिए कई उपजंगली पौधों को इकट्ठा करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। इस प्रकार से मैंने इन सभी चीज़ों को अर्थ, उसकी परिभाषा और उसकी अवधारणा क्या है और साथ ही साथ उसका महत्व क्या है उसको स्पष्ट किया। और मैं बता दूं कि अगले क्लास में मैं इसके वर्तमान समय में एथनोबॉटनी की क्या आधार है, वर्तमान समय में क्या इसकी भूमिका है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करूँगा। नाउ on the basis of above discussion, especially meaning, definition and concept along with the importance, it indicate that ethnobotany, that means most important and vital, and also plays significant role in the development of the society along with the people. एंड आप सभी जान रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी पूर्व में विस्तार से चर्चा की, उस पर स्पष्ट होता है कि मानव जाति वनस्पति विज्ञान या लोक वनस्पति के अंतर्गत जितने भी पौधे हैं वो उसका उपयोग मनुष्य अपनी जो आवश्यकता होती है उसके अनुसार यूज करता है। खासकर ट्राइबल जो हैं, जनजातीय समूह जो हैं, प्रादिकाल या प्राचीन काल से इसका उपयोग करते आ रहे हैं और वो अपनी समस्याओं का निदान इन जो पौधे होते हैं उसकी उपयोगिता और उसके अनुसार वो अपना देखभाल करते हैं। और अगले क्लास में वर्तमान समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसकी क्या भूमिका है एथनोबॉटनी की, उसके बारे में मैं आपसे विस्तार से बात करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। आप इससे संबंधित कुछ, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो, वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही अगला वीडियो अपलोड हो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।